Hello everyone. In today's video, we'll be learning how to write very large and very small numbers using exponents in standard form and vice versa. Means from standard form to usual form. And how to compare, add and subtract these numbers along with examples 8 and 9. तो पहले how to write small and large numbers in standard form using exponents. Okay? उसके लिए मैं पहले एक examples लेती हूँ, then I'll explain what is standard form and how to write these number using exponents. Suppose 7 है, 7 is 7 into 1. और I can write it as 7 into 10 raised to power 0, है ना. 10 raised to power 0 is 1 only. How to write 70? 70 is 7 into 10, means this is 7 into 10 raised to power 1. How to write 700? I can write this as 7 into 100. So this is 7 into 10 raised to power 2. Simple. What is 7000? That is 7 into 1000. So 7 into 10 raised to power 3. How to write 70,000? That is 7 into 10,000. So this is 7 into 10 raised to power 4. And if there is one number which is very large, means how I will write? Say these much zeros are there. Okay, देखो जब 7 था तो 10 raised to power 0 था, कुछ नहीं, 7 as it is. 70 था 1 0, तो 7 के बाद 1 0 तो 10 raised to power 1. 700 था तो 7 और 10 की 2 zeros were there. ठीक है. 7000, 7 into this 1000 means 3, 10 raised to power 3. 4 zeros, 10 raised to power 4. Now how many zeros are here? 3, 6, 3, 9 and 2, 11. So I can write this as 7 into 10 raised to power 11. एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि जितने डिजिट इसमें हैं, एक छोड़ के ये 7, 1 डिजिट छोड़ के बाकी जो है 10 रेज टू पावर, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो आ जाते हैं. जैसे इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 माइनस 1 11. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. 5 माइनस 1 4 डिजिट्स. 1 2 3 4 4 digits. 4 minus 1 3, so 10 raised to power 3. इस तरह से हम चेक कर सकते हैं. Suppose the number is 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0. How many? How I can write this number? I can write this number as 15 into how many zeros? 3, 3, 6, 3, 9 and 3, 12. One way of writing is this. Here I have taken 2 digits. But this is not the standard form. In standard form, there should only be 1 digit. Rest 10 raised to power. So if I write this as 1.5, this is only 1 digit. After decimal, there can be any number of digits, but before decimal, there should only be 1 digit. If I write this as 1.5, then I'll have to multiply by 10 to get 15. See, 1.5 into 10 is what? This is 0, 1, 5. तो कितना डेसिमल कहाँ लगेगा? आप यहाँ से देखो, राइट से कितने डिजिट्स के बाद लगा है? 1 के बाद, 5 के बाद, 1 डिजिट के बाद. तो ये मल्टीप्लाई करो
और इधर से स्टार्ट करो, 1 के बाद डेसिमल लगा दो. सो दिस इज 15. ओके, इनटू 10 raised to power 12. So this is 1.5 into 10 raised to power 1. Nothing is means 1. So 10 raised to power 1 into 10 raised to power 12. Same base, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं. So this is 10 raised to power 1 plus 12, 13. जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, देयर शुड ओनली बी 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल. ओके, इन दैट केस ये अप्लाई होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं उससे एक काम जो है 10 रेज़ टू पावर आ जाएगी. अब देखो कितने थे डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 13 डिजिट्स आ गए, बट ये होना चाहिए 1.5. डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट. दिस इज 1 डिजिट ओनली ना. इसको हम क्या, व्हाट इज 7? 7 एक्चुअली 7.00. सो डेसिमल से पहले इट इज ओनली 1 डिजिट. तो अभी तक हमने देखा है कि हाउ टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले मैं एक छोटा लेती हूँ स्मॉल नंबर, फिर धीरे धीरे बड़े उस पर पहुँचेंगे. सो पहला लेते हैं 0.7. इसको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आई वॉन्ट 1 डिजिट इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग. इसमें से मुझे एक डिजिट जो चाहिए वो डेसिमल के लेफ्ट में चाहिए. मतलब दिस इज 7 इंटू हमें 10 कुछ मिलेगा, 10 रेज़ टू पावर. 7 क्या है? 7 मीन्स 7.0 और 00 कितनी भी 0 वॉट एवर, पॉइंट के लेफ्ट में मुझे एक डिजिट चाहिए जो कि वो ये 7 है. तो 0.7 को मुझे बदलना है 7 में. 0.7 को 7 में कैसे बदलेंगे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 10 से करूं. अगर मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई 10 से किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, सो दैट ये नंबर यही रहे 0.7. So this is equal to 7 divided by 10. So this is equal to 7 into 1 by 10. So this is equal to 7 into 10 raised to power minus 1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. ये एक डिजिट हमें मिल गया डेसिमल से लेफ्ट में और 10 की पावर. ऑल्दो द पावर इज नेगेटिव है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव थी. ये 1/10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1. कैसे हमने पढ़ रखा ना, a रेज़ टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर m. तो ये 1/10 ये फॉर्म है. तो 10 रेज़ टू पावर 1 है, तो इसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 1. सो 10 रेज़ टू पावर माइनस 1. इससे भी छोटा नंबर लेते हैं, इसको 10 से डिवाइड करें तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू, इसको अब पहले हमें 7 में कन्वर्ट करना है. तो 0.07 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7 आए? 100 से. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लगाओ और 1 100. तो 100 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो दिस इज 7/100. सो दिस इज 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. और इससे छोटा लेते हैं 0.007. अब इसको 7 में बदलना तो क्या करेंगे? इंटू 1000, फिर डिवाइडेड बाय 1000. दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1000. सो दिस इज 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. और इससे छोटा लेते हैं. अब इसको 7 में बदलने के लिए क्या करना है? मुझे 4 0 और 1 से मल्टीप्लाई करना है. 4 0 और 1 10,000. उसी से मुझे डिवाइड भी करना होगा. सो दिस इज 7/10,000. दिस इज 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4. तो क्या पैटर्न मिलता है? 0.7. आप इसके राइट साइड पे देखो,
कितना डिजिट है पॉइंट के उधर? 1 डिजिट। सो दिस इज 7 इंटू 10 रेज टू पावर -1। 0.07 कितने हैं? डेसिमल जो है देखो, डेसिमल इधर 2 के बाद था, अभी हम इसको कैसे लिख रहे हैं? 7 इंटू 10 रेज टू पावर -2। इसका मतलब ये है हम पॉइंट को इधर ले जाते हैं, है ना, 2 प्लेसेस हम राइट में ले जाते हैं। अगर 2 प्लेसेस राइट में गए, राइट दिस 7 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अगर वो डेसिमल को राइट में ले जाते हैं तो ये इधर माइनस साइन। व्हाट इज 7? 7 इज नथिंग बट 7.00। डेसिमल के राइट में कितने भी जीरो लगाओ कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 7 ओनली। अब 0.007 है, इसमें हमने क्या किया? 7 लिखा है, 7 इंटू 10 की पावर लिखनी है। 7 मीन्स मैं इस डेसिमल को यहाँ ले आई हूँ। कितने प्लेसेस मूव किया? 1 2 3। इसका मतलब 10 रेज टू पावर -3 आएगा। 7 इंटू 10 रेज टू पावर -8। ऐसे हम समराइज कर रहे हैं, ठीक है। देन 0.0007, इसको भी 7 इंटू 10 रेज टू पावर लिखना है। तो ये क्या होगा? इसका मतलब मैं इस डेसिमल को कहाँ ले आई हूँ? इधर। कितने प्लेसेस मूव करे? 1 2 3 4। 4 मीन्स 10 रेज टू पावर -4। 7 इंटू 10 रेज टू पावर -4। सपोज मुझे नंबर लिखना है दिस वन। कितने जीरोस हैं? इसका मतलब मुझे इसको लिखना है 7, 1 डिजिट। क्यों 7 लिख रहे हैं? ओनली 1 डिजिट वी आर टेकिंग। अभी इसमें तो है ही 1 डिजिट, आगे मैं बताती हूँ कैसे। तो 7 7 1 डिजिट क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी उसमें क्या है? ओनली 1 डिजिट इज टू बी टेकन। सो 7 इंटू 10 रेज पावर कितना होगा? इसका मतलब डेसिमल को मैं कहाँ ले जा रही हूँ? यहाँ पे। कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स दिस इज 10 रेज टू पावर -8। जब राइट में मूव करते हैं इट इज -8। वेयर एज इसमें हमने एक्चुअली क्या किया देखो, जैसे ये देखते हैं 70 को मैंने 7 की उसमें लिखना है। क्यों 70 में क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे एक ही डिजिट लेना है, एक ही डिजिट लेके 10 रेज टू पावर करना है, ठीक है। दैट मीन्स 70 क्या होता है? 70 मीन्स दिस इज 70.0, है ना, मीन्स पॉइंट मेरा यहाँ पर है। अब 7 लिखना है मुझे, तो इस पॉइंट को मैं इधर ला रही हूँ, है ना। दिस पॉइंट आई एम ब्रिंगिंग इट हियर। कितने प्लेसेस मूव करा? 1 डिजिट मूव करा मैंने लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ लाते हैं तो पावर पॉजिटिव, ठीक है। जैसे इसमें 700 है, कोई भी नंबर हो उसके आगे पॉइंट हम लगा सकते हैं, लिखते नहीं हैं, ओमिट करते हैं। जैसे 700 है तो 700.00 लिख सकते हैं, मीन्स पॉइंट इधर है। अब इसको मैंने लिखना है 7 इंटू 10 रेज टू पावर। तो डेसिमल को मैं कहाँ ला रही हूँ? 7 के बाद इधर। कितने प्लेसेस मैंने मूव किया? 1 2। 2 प्लेसेस मीन्स 2 डिजिट्स मैंने इधर मूव किया। सो 10 रेज टू पावर 2। अभी मैं लेफ्ट की तरफ ला रही हूँ तो पॉजिटिव। जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो इट इज नेगेटिव पावर। ये ऐसे याद कर लेना। अब जैसे 7000 है, 7000 मीन्स डेसिमल इधर था। अब मेरे को इसको 7 लिखना है 7 की फॉर्म में, तो मैं डेसिमल को यहाँ ला रही हूँ, है ना। कितने डिजिट्स में ले आई? 1 2 3। तो 10 रेज टू पावर 3 होने वाला है। अब साइन देखो कौन सा आएगा, क्योंकि मैं इसको डेसिमल को लेफ्ट में ला रही हूँ। लेफ्ट में लाने से साइन इज पॉजिटिव। वेयर एज यहाँ देखो, यहाँ 0.007 था, यहाँ डेसिमल को हम राइट में ले गए। राइट में ले जाएंगे तो साइन विल बी नेगेटिव, 10 रेज टू पावर -3, ठीक है।
सेम वे 70,000 मीन्स यहाँ डेसिमल था, मैं डेसिमल को ले आई इधर, कितने प्लेसेस में लेफ्ट में ले आई 1 2 3 4, मतलब 10 रेज़ टू पावर 4 होगा, और क्योंकि लेफ्ट में लाई हूँ तो 10 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव 4 है। इसमें देखे 0.0007, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको लिखना है 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो मैं डेसिमल को ले गई राइट में, 7 के बाद लगा दो, कितने प्लेसेस राइट में मूव किए 1 2 3 4, तो 10 की पावर तो 4 होगी, अब माइनस होगी प्लस होगी, अब मैं कहाँ ले गई इसको राइट में जाता तो पावर इज माइनस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। वो आपने देख लिया ना कैसे किया, ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया, ये सारा याद करने के लिए कि कैसे ब्रीफली हम कर सकते हैं। अब जैसे ये नंबर था, है ना, इसमें क्या था, ये इतना बड़ा नंबर है तो पॉइंट यहाँ हम कहाँ ले आए, इस पॉइंट को इधर, है ना, 1.5 लिखने के लिए मैं पॉइंट को यहाँ ले आई। कितने डिजिट्स मैंने मूव किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 digits I have moved. So 10 raised to power 13, 1.5 into 10 raised to power 13, और क्योंकि लेफ्ट में ला रही हूँ तो पॉजिटिव 13। सपोज जैसे ये नंबर था, यहाँ पे हमने क्या किया, इट वॉज पॉइंट हियर, और अब पॉइंट को मैं ले गई इधर, क्योंकि मुझे 7 लिखना ना, तो 7 पॉइंट हुआ, तो कितने प्लेसेस मैंने राइट में मूव किए 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 10 रेज़ टू पावर -8। माइनस क्यों, क्योंकि ये डेसिमल जो मूव किया राइट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में जाएगा तो साइन माइनस। सपोज द नंबर इज 7 2, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अच्छा, स्टैंडर्ड में नहीं लिखे तो इससे पहले मैं इसको, सपोज मैं अगर पॉइंट को यहाँ ले जाती हूँ सपोज, तो क्या होगा, ये अगर पॉइंट को मैं यहाँ ले जाती हूँ तो ये होगा 72 इंटू कितने डिजिट्स, पॉइंट को मैं यहाँ ले, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। क्यों, क्योंकि राइट में ले गए हम, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इट शुड बी ओनली 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल। ये 72 में 72 डेसिमल यहाँ है, तो ये 2 डिजिट्स हैं, तो मुझे डेसिमल को कहाँ ले जाना है, मुझे डेसिमल को उठा के इधर ले आना है, ठीक है। तब ये नंबर क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने प्लेसेस मूव करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज़ टू पावर -8 जो हमें चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे ये चाहिए ओनली 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल, तो 7.2 लिख दो, कितना जितना भी आगे लिखा, अगर इधर 5 है तो 25 लिखा जाएगा। तो डेसिमल को जहाँ तक हम ले गए उससे पहले वाले डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज़ टू पावर -8। माइनस क्यों, क्योंकि राइट में ले गए। अगर ये नंबर होता सपोज 1 2 3 4 5 6 7 7 2 5 से, और मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि मुझे जो ये डेसिमल है इसको कहाँ ले जाना है, डेसिमल को मुझे यहाँ पे ले जाना है, यहाँ, क्योंकि मुझे 7 पॉइंट चाहिए। अगर मैं यहाँ ले जाती तो वो 725 हो जाएगा, तो 725 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज इक्वल टू 7.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तुम्हें ये डेसिमल से यहाँ तक डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज़ टू पावर -8। सपोज एक नंबर दिया है 0.0016 की थिकनेस ऑफ द पेपर इज दिस मच, 0.0016 सेंटीमीटर। राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चाहिए 1 पॉइंट, तो इस पॉइंट को उठा के
यहाँ ले जाएंगे, है ना। यहाँ 16 में क्यों नहीं, तब हमारा ये 16 इंटू आ जाता, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के इधर एक डिजिट चाहिए मुझे, तो डेसिमल को हम यहाँ ले आए, तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर, डेसिमल एक तो कहाँ गया, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में मीन्स मेरा एक्सपोनेंट होगा नेगेटिव। कितने डिजिट्स, 1 2 3, तो -3। दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 सेंटीमीटर। Try these on page 199. Write the following numbers in standard form. First is this 0.0006 times 564. Standard form means कहाँ ले जाना है मुझे डेसिमल को, डेसिमल को उठा के मुझे ले जाना है इधर। क्यों, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट में मुझे एक ही डिजिट चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। सो दिस इज इक्वल टू 5.64 इंटू 10 रेज टू पावर। अब ये हम डिजिट जो डेसिमल को उठा के कौन सी डायरेक्शन में ले गए, राइट में। जब राइट में ले जाते हैं तो कौन सा एक्सपोनेंट होता है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव पावर, इस डेसिमल से काउंट करो, लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू पावर -7। नेक्स्ट है 0.0 डेसिमल 1 2 3 4 5 zeros and 21। वी आर टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डेसिमल को उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मुझे डेसिमल के इधर एक ही डिजिट चाहिए। सो दिस इज 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर, किस डायरेक्शन में ले गए, राइट में, तो पावर विल बी नेगेटिव। कितना, डेसिमल से इधर काउंट करो, कितने प्लेसेस मूव किए इधर, 1 2 3 4 5 6, सो 10 रेज टू पावर 6। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज 2161005 टाइम्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें जिसमें डेसिमल नजर नहीं आता मीन्स वो लास्ट में होता है। एनी नंबर कैन बी रिटन एज 21600 पॉइंट, आगे 00। तो जो डेसिमल के राइट साइड में 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम इसको भी ओमिट करते हैं। अब इसको क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें ये मेथड पता है कि डेसिमल को हमने मूव करना है, इसलिए यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे एक डिजिट चाहिए, है ना। मुझे 3 डिजिट या 2 नहीं चाहिए, ओनली 1 डिजिट आई वांट बिफोर द डेसिमल। यानी कि मैं इस डेसिमल को उठा के कहाँ ले आऊँगी, यहाँ पे। कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट में ले आ रही हूँ। लेफ्ट में ला रही हूँ तो पावर पॉजिटिव होगी, है ना। जब राइट में ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव, जब लेफ्ट में लाते हैं तो पावर इज पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा 2.16। कितना पावर आएगी, जितने प्लेसेस हमने मूव करे, 1 2 3 4 5 6 7, सो 10 रेज टू पावर 7 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 1524 and 4 zeros। तो डेसिमल कहीं नहीं नजर आ रहा, मीन्स ये यहाँ पर है राइट पे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए, 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल, दैट मीन्स ये मुझे चाहिए, ओनली 1 डिजिट। यानी कि मुझे ये डेसिमल को उठा के इधर ले आना है। कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट। लेफ्ट डायरेक्शन मीन्स मेरी पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। राइट में जब जाते हैं तो पावर नेगेटिव, जब लेफ्ट में आते हैं तो पावर आएगी पॉजिटिव। इसको ऐसे ही लिखो 1.524, जहाँ तक ये नंबर होता है वहाँ तक लिखते हैं, बाकी फिर 10 रेज टू पावर लिखते हैं। अब कितना पावर होगी, यहाँ से डेसिमल आ गया यहाँ तक, इतने प्लेसेस आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1.524 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इज द स्टैंडर्ड। हमें बस 2 फिगर्स हैं
जो कि वेरी लार्ज नंबर्स हैं, जैसे कि डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर्स and that of the earth is 1.2756 into 10⁻7 meters. इन दोनों को हमें कंपेयर करना है. कंपेयर करना मीन्स 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर्स अपॉन 1.2756 इंटू 10⁻7. देखते हैं कौन कितना बड़ा या छोटा है. सो दिस आई कैन राइट 1.4 अपॉन 1.2756 into 10⁻9 upon 10⁻7. So this is equal to 1.4 upon, say this is close to 3. This is approximate. Here we do the approximation, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. We are to compare these numbers approximately into a base same division है. क्या होगा, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 9 - 7. सो दिस इज, ये देखो 1.4 अपॉन 1.3 ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, है ना. दिस इज 1 अप्रॉक्सीमेट है ये, ओके. इंटू 10⁻9 - 7 इज 2. तो दिस इज 1 इंटू 10⁻2 इज 100. मीन्स वॉट, 100 अपॉन 1, है ना. 100 upon 1, say. That means diameter of the sun is 100 times that of the diameter of the earth. अभी एक एग्जांपल लेते हैं जो कि वेरी स्मॉल नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करते हैं. साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज दिस एंड साइज ऑफ प्लांट सेल इज दिस. कंपेयर करना. सो आई कैन राइट दिस नंबर 0.000507 इक्वल टू दिस. आई कैन राइट, पॉइंट को ले जाते हैं इधर राइट डायरेक्शन में यहाँ पे. तो दिस इज 7 इंटू, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं ना, 10⁻, अब राइट में ले जा रहे हैं तो -1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6. ठीक है. एंड द अदर नंबर इज 0.001275. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पॉइंट को ले जाएंगे इधर. तो दिस इज 1.275 इंटू 10⁻, राइट में ले गए तो माइनस कितना, 1 2 3 4 5. पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. अब हमें इसको कंपेयर करना है. सो दिस इज 7 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.275 इंटू 10⁻5. So we can write this as 7 upon 1.275 into 10⁻, बेस सेम और डिवीजन है तो पावर्स को माइनस करेंगे. -6 -5. This is 10⁻6 upon 10⁻5. बेस सेम, डिवीजन तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. -6 -5. So this is equal to, अब 7 upon 1.27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सी 12 5 60 और 12 6 72, है ना. तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.3 से, है ना. तो 7 upon 1.3, दिस इज अप्रॉक्सीमेट into 10⁻, -6 minus into minus plus +5. -6 + 5 is -1. So this is 7 upon 1.3 into 10⁻1. This is 1 upon 10⁻1, है ना. -1 एक्सपोनेंट है, इसको प्लस में बदलना है तो दिस इज 1 upon, सेम थिंग, खाली साइन चेंज कर दो एक्सपोनेंट का. सो दिस इज 7 upon 13. 1.3 into 10 इज, मल्टीप्लाई करो, इधर से कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, ये 1 के बाद है, 3 के बाद. तो यहाँ 1 3
0 और यहाँ लग जाएगा. So this is 13. Now this is approximately 7 and 14 means 1/2 approximate. That means size of the plant cell is double that of red blood cell. That is, size of red blood cell is just half of the size of the plant cell. इसमें एक एग्जाम्पल लिया है. मास ऑफ द अर्थ इज दिस मच and mass of the moon is this much. What is the total mass? That means we have to add these two masses. अब इसमें देखो 10 raised to power 24 है and here it is 10 raised to power 22. तो क्या करेंगे हम? Total mass is 5.97 into 10 raised to power 24 plus 7.35 into 10 raised to power 22. अब अगर मैं ये पावर सेम कर देती हूँ तो आई कैन टेक दिस कॉमन आउट. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है ना, a इंटू सी प्लस b इंटू सी. a हेयर इज 5.97, c 10 raised to power 24. यहाँ c को हम सेम कर देते हैं, हेयर इट इज 10 raised to power 22. तो तब हमारा ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, c कॉमन एंड a प्लस b. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब इधर कम वाली पावर है, इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं. कैसे? 5.97 आई कैन राइट दिस एज 10 raised to power 2 into 10 raised to power 22 है ना. a raised to power m into a raised to power n is a raised to power m plus n. सेम बेस, पावर्स ऐड हो जाएंगी, या इसको हमने स्प्लिट करके लिखा है. सो दिस प्लस 7.35 into 10 raised to power 22. अब इसको हम इकट्ठा कर देते हैं. 5.97 इंटू 100, 5.97 इंटू 100. पॉइंट को भूल जाओ पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई करो. अब पॉइंट लगाना है. डेसिमल कहाँ लगाएंगे? इधर कितनी प्लेसेस के बाद लगाया? राइट से 2 प्लेसेस के बाद. तो आप राइट से 2 प्लेसेस के बाद लगाओ. तो दिस इज 597. सो दिस इज 597 into 10 raised to power 22 plus 7.35 into 10 raised to power 22. तो हमने इसको कॉमन सेम कर लिया. नाउ विल टेक दिस आउट. कैसे? दिस इज इक्वल टू 597 प्लस 7.35 इंटू 10 raised to power 22. ये सी सेम हो गया ना, सी वी कैन टेक इट आउट, a प्लस बी. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है. 597 प्लस 7.35, ठीक है ना, ये वंस है. 597 इज नथिंग बट 0.00. ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 604.35 into 10 raised to power 22 is the answer. सब्ट्रैक्शन का भी सेम मेथड है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें दिया डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज दिस मच and distance between earth and moon is this much. During solar eclipse, moon comes in between sun and earth. sun, earth. sun और अर्थ का ये डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, ठीक है. एंड अर्थ और मून का भी दिया हुआ है. अर्थ एंड मून, सपोज ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन, तो मून बीच में आ रहा है. एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन. ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून? मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है? सन एंड मून, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है. दिस मच डिस्टेंस आई एम गिवन, this much distance I am given, I am to find out this one. क्या करेंगे? this minus this, I will get this.
So distance between sun and earth is 1.496 into 10 raised to power 11, and distance between moon and earth is this, so minus 3.84 into 10 raised to power 8. पहले वाले में प्लस था, अभी माइनस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे. फर्स्ट हम इसकी पावर सेम करते हैं. कैसे? 1.496 into this I can write as 10 raised to power 3 into 10 raised to power 8. बेस सेम, पावर जो है ऐड हो जाती हैं. 3 plus 8 10 raised to power 3 plus 8 11. So 11 I can write 10 raised to power 3 into 10 raised to power 8 minus 3.84 into 10 raised to power 8. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 1.496 into 10 raised to power 3. 3 मीन्स 1000. पॉइंट भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो पहले. अब पॉइंट लगाना है. कहाँ लगाना है? यहाँ से राइट से गिनो 1 2 3, 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, 1496 ओके इंटू 10 raised to power 8 minus 3.84 into 10 raised to power 8. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एंड यहाँ क्या बच गया? 1496 साइन 3.84. ठीक है. अब 1496 में से कितना माइनस करना मुझे? 3.84. 3 कहाँ आएगा? वंस डिजिट के नीचे. पॉइंट इसके बाद पॉइंट शुरू हो जाता है. आई कैन राइट दिस एज 0.00. अब इसको माइनस कर लो. So this is 1492.16 into 10 raised to power 8 meters. 1492.616 into 10 raised to power 8 meters. This is the answer. Next is example 8. Express the following numbers in standard form. First is 0.0040 and 35. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसमें मुझे एक ही डिजिट चाहिए, एक डिजिट, और बाकी सारी डिजिट डेसिमल के राइट साइड पे. डेसिमल के लेफ्ट में मुझे एक डिजिट चाहिए इंटू 10 raised to power. अब दिस नंबर आई कैन राइट एज अपॉन, डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स हैं? 4 and 2 6, तो अपॉन 1 along with 6 zeros. ऐसे ही होता है ना. जैसे देखो सपोज 8.5 है. ठीक है. 8.5 का अगर मुझे अभी इसमें हमने डेसिमल हटाया कि मुझे पता है एवरी डेसिमल, एवरी नंबर विद डेसिमल इज सम फ्रैक्शन ओनली. यही फ्रैक्शन है वो. कैसे फ्रैक्शन आता है? सपोज 8.5 है, इसका मुझे डेसिमल हटाना है, तो हम क्या करते हैं ना, डेसिमल हटा के वी डिवाइड बाय 10. दैट मीन्स 8.5 इज 85/10. वो कैसे आता है? जैसे हमने पीछे एग्जांपल में भी करा था ना. 8.5 आई कैन राइट एज 8.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10. अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करूँगी. व्हाट इज 8.5 इंटू 10? दैट इज 85. तो 85/10. तो वो यही है. इसीलिए हम ऐसे करते हैं, डेसिमल हटाते हैं और डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? ओनली 1. तो डिवाइड कर दो 1 with 1 0. अगर होता 8.57, इसका डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाओ 857, नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 and 0. 2 0 1, 100 से डिवाइड करो. दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. अदरवाइज भी आप देखोगे 85 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 8 80. अब 5 नहीं जा सकता, पॉइंट, देन 0, 8.5.
Likewise, I can write this number as this. डेसिमल हटा दो, सेम नंबर लिखो, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो विद 1. अब नंबर के लेफ्ट में जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनका कुछ नहीं है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप इनको ओमिट कर सकते हो. तो दिस नंबर इज़ 35 अपॉन, एंड दिस नंबर आई कैन राइट 10 रेज टू पावर 6. 6 ज़ीरोज़ है ना, तो 10 रेज टू पावर 6. तो दिस नंबर इज 35 इंटू 10 रेज टू पावर -6, क्योंकि दिस नंबर इज 35 इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 6. अब 1 अपॉन 10 रेज पावर 6 इज 10 रेज टू पावर -6. हमने किया ना, a रेज टू पावर -m इज 1 अपॉन a रेज टू पावर m. तो 1 अपॉन a रेज टू पावर m ये फॉर्म है, तो दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर -m, a रेज टू पावर -m. यहाँ पे a 10, m इज 6, तो ये आ गया 10 रेज टू पावर -6. बट इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म? नो, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डिजिट है. हमें चाहिए एक ही डिजिट टू दी लेफ्ट ऑफ द डेसिमल. 35 तो ये है ना डेसिमल इसका. 35 क्या है? 35 इज दिस ओनली. डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, तो जो हम ओमिट कर देते हैं. So I want this number as 3.5. अब डेसिमल के इधर एक नंबर डिजिट मुझे मिल गया, इधर कितने भी हों, अब इधर एक ही है तो 3.5 है. अब अगर मैंने 35 को 3.5 लिखा है तो इसको 35 के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 35 इज 3.5 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6. सो दिस इज 3.5 इंटू, यहाँ पे एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा, a रेज टू पावर से यहाँ नो पावर मीन्स 1, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n. बेस सेम, तो 10 रेज टू पावर 1 प्लस -6. सो दिस इज 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस इंटू -6. So this is 3.5 into 10 raised to power 1 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स दिस इज प्लस, डिफरेंट साइन मीन्स माइनस करो. 6 - 1 5, साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का, माइनस. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आई वॉन्ट ओनली 1 डिजिट बिफोर डेसिमल. तो ये है ना नंबर हमारा, तो मुझे डेसिमल को कहाँ ले जाना है? यहाँ पे, ठीक है. और किस डायरेक्शन में? राइट में. तो ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर, राइट में ले गए तो एक तो माइनस आएगा. जब डेसिमल हम राइट में मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट इज नेगेटिव. कितने डिजिट्स मूव किया हमने? 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू पावर -5. दिस इज द आंसर. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट इज सेकेंड 405 0 0 0 4 zeros. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे वही 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल. उससे पहले हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं. इसको मैं लिख सकती हूँ 405 इंटू 1 एंड 4 zeros. ठीक है ना. 405 इंटू दिस नंबर 1 10,000. सो दिस नंबर आई कैन राइट 405 इंटू 10 रेज टू पावर 4. बट दिस द स्टैंडर्ड फॉर्म? नो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट है, मुझे एक ही चाहिए. सो आई एम टू कन्वर्ट दिस नंबर एज 4.05. तब ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि मुझे लेफ्ट में एक ही डिजिट चाहिए डेसिमल के. अगर 405 के लिए मैंने 4.05 लिखा है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से. डेसिमल के इधर कितने हैं डिजिट? 2, तो 2 0 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो दिस नंबर इज 405 इंटू 10 रेज टू पावर 4 एज इट इज. सो दिस इज 4.05 इंटू दिस इज 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4. अब वो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो सेम बेस पावर्स ऐड कर दो. 2 + 4 is 6. So this is the standard form.
सेकेंड है 405,000,0 zeros। अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं नज़र आ रहा, दैट मीन्स डेसिमल इसका यहाँ पे है राइट में, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या चाहिए मुझे, डेसिमल से पहले एक डिजिट, दैट मीन्स डेसिमल को कहाँ ले जाऊँ मैं, यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, इनटू ये नंबर कितना है 4 पॉइंट नंबर 5 तक लिखा जाएगा, ये आगे तो 0 0 है। 4.05 इंटू 10 रेज टू पावर कितने प्लेसेस हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 10 रेज टू पावर 6 पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट में है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी हुई है तो यूजुअल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 3.52 इंटू 10 रेज टू पावर 5, तो दिस आई कैन राइट 3.52 इंटू 1 2 3 4 5, सो दिस इज 352,000 लगाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई हो गया पहले तो 3.52, पहले पॉइंट हटा के आप मल्टीप्लाई कर लो 5 zeros, डेसिमल कहाँ लगेगा 3.52 में कहाँ लगा है, ये राइट से 2 डिजिट्स के बाद। अब आपके रिजल्ट में राइट से 2 डिजिट के बाद लगा दो डेसिमल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35230 यहाँ पे। तो डेसिमल के राइट में जितनी ज़ीरो होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको आप ओमिट कर सकते हो। तो दिस इज़ द आंसर, ये यूजुअल फॉर्म है। देखो कोई भी नंबर जब होता है से 9.00 कितनी भी ज़ीरो आएंगी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के राइट में कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मान लो डेसिमल इधर है 0.9, तो डेसिमल के लेफ्ट में भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, यू कैन राइट सिंपली एज 0.9 और 0.9, इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो डेसिमल था। और अगर आप 452 जैसे एक नंबर है, इसके लेफ्ट में अगर कुछ है 0 zeros, लेफ्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको 452 लिख सकते हो। वेरएज राइट में अगर लिखोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी 0.00 वी कैन ओमिट दैट। सेकेंड है 7.54 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, सो आई कैन राइट दिस एज 7.54 इंटू 1/10 रेज़ टू पावर 4, सेम a रेज़ टू पावर -m, a रेज़ टू पावर -m इज 1/a रेज़ टू पावर m, तो 1/10 रेज़ टू पावर 4। So this is 7.54 divided by 1 with 4 zeros. So this is equal to 754। जब 4 ज़ीरो हटाएंगे तो मुझे डेसिमल के इधर 4 डिजिट्स चाहिए, मतलब अगर मैं 4 डिजिट हटाती हूँ तो मेरा डेसिमल इधर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा 4 डिजिट्स। 7 तो ऑलरेडी एक है, 1 2 3 एक और, तो यहाँ पे ये आ जाएगा नंबर। ऐसे ही करते हैं ना, अभी मैंने 85 वाला आपको बताया था कि 8.5 है, जब मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो डिवाइड बाय 10 होता है ना। अगर सपोज 8.57 है, इसका डेसिमल हटता है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लग जाती हैं। सपोज 8.572 है, ये डेसिमल हटता है तो 1 2 3 ज़ीरो लगती हैं, है ना। अब उल्टा चलें, अगर हम जैसे ये अब यहाँ पहुँचे, हम अब उल्टा चलते हैं, ये ज़ीरो हटानी है और इसमें डेसिमल लगाना है। 1 2 3 है, 3 ज़ीरो हटाओ, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाओ, यही था ना 8.5। जैसे ये ज़ीरो हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, 1 ज़ीरो हटाओगे 1 के बाद पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, है ना, 4 ज़ीरो हैं
अब इसका डेसिमल जो था, जैसे ये है 857/100 है, 0 हटाए तो हमने डेसिमल को यहाँ लगाया 2 के बाद। ओरिजिनल कहाँ था डेसिमल? यहाँ पे, जो जब नज़र नहीं आता मीन्स ये राइट में है, तो डेसिमल के इधर हम आ गए 2 प्लेसेस लेफ्ट में। ऐसे ही जब 85/10 तो डेसिमल है यहाँ पे, 1 0 हटाई तो डेसिमल को 1 प्लेस हमने मूव कर दिया यहाँ पे। अब जब मैं 4 0 हटाऊंगी तो डेसिमल के इधर मैं मूव कर दूंगी 4 प्लेसेस। यहाँ लिखा नहीं है तो उतने 0 डालो, ठीक है। वहाँ तो डिजिट से नहीं है तो उतने 0 डालो। 1 2 1 2 3 4, ये 4 हो गया। यहाँ से आपका डिजिट जो है, यहाँ से जो डेसिमल है यहाँ आ गया। सो दिस इज द आंसर, ये है यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट है थर्ड, 3 × 10⁻⁻5। तो पहले तो इसको 3 × 1/10⁵ कर दो। सेम a⁻m इज 1/a⁻m। माइनस को प्लस में बदलने के लिए 1 सेम थिंग, उसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज करो। सो दिस इज 3/1 2 3 4 5 zeros, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे। मुझे 5 0 हटानी है। 3 मीन्स मेरा पॉइंट कहाँ पर है? इधर है ना। 3 मीन्स मेरा ये है। अब मैंने 5 डिजिट्स करने हैं पॉइंट के इधर। एक है ऑलरेडी, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। मीन्स ये पॉइंट उठा के आपका यहाँ आ गया इसको, तो दिस इज दी नंबर। ये है यूजुअल फॉर्म का नंबर। अब जब हम लिखते हैं ना पॉइंट के तो 0 लग देते हैं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इस तरह से लिखते हैं हम नंबर। और अगर आप नहीं भी लिखते तो दिस इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस इज यूजफुल। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.